اسی طرح میں عوام کا 5 سال کے لیے ووٹ کا قرض دار ہوں. اگر میں ان کے کام نہیں کرا تو میں ان کو جواب دینے ہوں, میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں یہ سوچ و فکر کے ساتھ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کے مسائل کو حل کرے. سب سے اہم سوال ہے کہ تلاب پٹا ریلوے ٹریک کے پاس کام سٹارٹ کیا گیا تھا اور وہ کام کو بند کر دیا گیا. وہ سٹارٹ کیے اور بند کرے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ تھوڑے دن پہلے مولا کے چھلے کے پاس کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر مقامی لوگوں کو بہت زیادہ تکالیفیں ہو رہی ہیں اور وہ کام کو بہت سلو کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ عوام یاقوت پورے کی عوام اگر آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے اور ڈائریکٹ آپ کو اپنے مسائل سنانا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ عوام کے مسائل عوام لیڈروں کو تو سنا رہی ہے لیکن آپ تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے, آپ کا کریے. شاہجہاں فنکشن ہال کے پاس جو کچرا کنڈی ہے وہاں پر بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے, یہ GHMC کی لاپرواہی ہے؟ ابھی سنیے آپ. ناظرین السلام علیکم, RS نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں سید مبین. آج ہمارے ساتھ موجود ہے یاقوت پورے کے MLA جعفر حسین معراج صاحب. آج ہم جعفر حسین معراج صاحب سے سوالات کچھ کریں گے. دن معراج جب سے MLA بنے ہیں 1 سال کے اوپر عرصہ ہو چکا ہے کہ جعفر حسین معراج MLA بن کر, اور وہ 1 سال سے 24 گھنٹے یاقوت پورے کی عوام کی آواز سے وقف کر چکے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جعفر حسین معراج صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے سوال کیا کہ آپ 1 سال سے MLA بنے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ درست کر دوں بات کہ میں الحمدللہ 2014 سے MLA ہوں. 2 مرتبہ نامپلی کا MLA تھا. 1 سال پہلے میری پارٹی نے موقع دیا تو میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کا MLA کی حیثیت سے اللہ کے فضل سے کام کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی سے موقع دیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا. تو میرے کو ہمیشہ خدمت کا جذبہ رہا ہے. میں ہر جمعہ ایک مسجد میں نماز پڑھ کے ممبر رسول سے جہاں موقع ملا میں تقریر کر کے بولتا ہوں کہ اگر فرض کریے آپ کسی کو قرض دیے ہیں تو وہ قرض اصول کرتے ہیں, اگر انہیں قرض نہیں دیا تو اس سے مطالبہ کرتے خود جاتے. اسی طرح میں عوام کا 5 سال کے لیے ووٹ کا قرض دار ہوں. اگر میں ان کے کام نہیں کرا تو میں ان کو جواب دینے ہوں, میں اللہ کو جواب دے ہوں. میں یہ سوچ و فکر کے ساتھ حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کے مسائل کو حل کرے, تاکہ میں پرسنلی اگر عوام سے ملاقات کروں گا تو ان کی تکلیف کیا ہے معلوم بھی ہوئیں گے, اور وہ حساب سے عوام اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ میں ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں مطمئن ہے. جو کمپلینٹ آتا اس کو ہم باضابطہ اٹینڈ کرتے. مجھے جیتے ہوئے 1 سال ہوا. میں کافی کوشش کر کے ابھی کافی الحمدللہ کئی حد تک مجھے اللہ نے کامیابی دیا, اور کام باقی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے ٹینیور کے اندر جو اللہ نے مجھے 5 سال کا موقع دیا ہے اس میں کوشش کر کے یاقوت پورے کے اندر میں ضرور بضرور بہترین کام کروں گا اور دستیاب رہوں گا یاقوت پورے کی عوام کے لیے. سب سے اہم سوال ہے کہ تلاب پٹا ریلوے ٹریک کے پاس کام سٹارٹ کیا گیا تھا اور وہ کام کو بند کر دیا گیا. وہ سٹارٹ کیے اور بند کرے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں, کام جو سٹارٹ ہوا ہے کوئی کام بند نہیں ہوا. ریلوے ٹریک میں آنے سے پہلے ایک ٹینڈر ہوا تھا. ریلوے ٹریک کے نیچے سے انڈر پاس لے کے للیتا باغ کی طرف وہ روڈ جاری تھی. جو کام ریلوے کی طرف سے ہوتا ہے, GHMC جو اپنا فنڈ تھا وہ ریلوے کو جمع کر دی. کسی وجہ سے وہ کام چل رہا تھا. جو پرانا کانٹریکٹر کام لیا تھا ریلوے سے, وہ کانٹریکٹر کام نہیں کر رہا تھا. انہیں صرف ڈگنگ کر کے کام نہیں کر رہا تھا, جس کی طرف سے ریلوے والوں نے اس کانٹریکٹر کا کانٹریکٹ کینسل کر کے ری ٹینڈر کرے ہیں. اب وہ ری ٹینڈر اوپن ہو کے نیا کانٹریکٹر کو آیا. جب تک جو گڑھا انہوں کام کرنے کے لیے کھودے تھے, جس سے مجھے پرسنلی یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی جو گڑھے میں پانی بھر جانے کی طرف سے وہاں پر ایک شخص پتہ نہیں کیا حالات میں تھا, گر کے وہاں پہ اس کی موت ہوئی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ جس وقت کام ہوئے گا دوبارہ ان لوگ کام کریں گے. کام جب کرتے سمے ہم بیریکیڈنگ لگا کے کام کو پوری توجہ دے کے کریں گے. ہم نے ریلوے سے ملاقات بھی کی. ریلوے کے ذمہ داروں نے کہا کہ ٹینڈر ہو گیا, ابھی ہمارے ایگریمنٹ پروسیس چل رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد وہ کام چالو ہو جائیں گا. چونکہ وہ کام کو اسی لیے ہے کہ میرے MLA بننے سے پہلے کا سینکشن ورک ہے, اس کو مکمل کرانا میری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ذمہ داری سے کراؤں گا. تو وہاں پر اب جو بچی ہوئی روڈ ہے وہ پڑ جائے گی, نہیں پھر سے دوبارہ وہ کام سٹارٹ ہوگا؟ نہیں سنیے آپ, روڈ بچی ہوئی نہیں. روڈ جو بازو بچی ہوئی ہے وہاں سے انڈر پاس نہیں جا رہا.
ब्रिज के नीचे से अंडरपास जा रहा, रोड का हिस्सा अलग है, अंडरपास का हिस्सा अलग है। और जो रोड है वो हम GHMC से मुकम्मल करा रहे हैं, तकरीबन रोड डाल दिए, थोड़ा सा जो पार्ट पेंडिंग रखे वहाँ पे सिर्फ क्या है एक NP2 पाइपलाइन पड़ने का है, जो आने के बाद इनको पानी की दुश्वारी ना हो, वो टुकड़ा डालने के बाद वो भी रोड मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़े दिन पहले मौला के छिल्ले के पास का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि वहाँ पर मुकामी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं और वो काम को बहुत स्लो किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनिए, पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ, मौला के छिल्ले कने गंगानगर का एक नाला है, वो नाले का काम पिछले करीब 2-2.5 साल से काम चल रहा। काम की रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट काम करता, मगर कोई भी नाला रनिंग जब रहता उसके अंदर काम करने के लिए दुश्वारी इसलिए होती कि बस्ती बहुत ही गुंजान बस्ती है, जहाँ पे छोटे छोटे गलियाँ हैं, रोड नहीं है। तो वैसी हालत पे इन लोग क्या करते, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके पहले जो पुराना नाले को पाइप डाल के डाइवर्शन देते, डाइवर्शन दे के उतना टुकड़ा जैसा 25 मीटर 30 मीटर 20 मीटर कर लेते आते। ऊपर से नाला पूरा बनते हुए आ गया, अभी नीचे से जो हम डबिलपुरा जो हैदर होटल की तरफ आता है उसको जो कनेक्ट करना है, अब हम फिर वहाँ से शुरू करें, डाइवर्शन करके काम कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करिए डाइवर्शन नहीं करे तो जितने छोटे घर हैं वो पूरे के पूरे नाले का जो पानी अगर घरों में घुस गया तो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा रहता। ये तो क्या है, आज सोशल मीडिया पे बुरा मत मानिए, लोगों को क्या एक फैशन हो गया फ़ोटो डालना। टेक्निकल क्या काम है क्या नहीं कोई ध्यान नहीं देते, बिना टेक्निकल काम के कैसा होगा। और एक चीज़ क्या है, मुझे जैसा हिंदुस्तान का कानून होता है, हिंदुस्तान के कानून में 2 चीज़ है, पब्लिक हमको वोट डाल के हमको जिताती है, मगर हम नॉन टेक्निकल होते। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते जिसको अपॉइंटमेंट करते वो टेक्निकल होते, हमारा काम टेक्निकल नहीं है, हमारा काम रिप्रेजेंटेशन करके काम कराना। टेक्निकल आदमी वो काम कैसा बेहतर कर सकता, उसका काम है वो काम करना। तो इसीलिए टेक्निकल जो चीज़ है, टेक्निकलिटी के हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं, काम रेगुलर चल रहा। नो डाउट वो काम इसीलिए स्लो है कि उनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से काम करेंगे। अगर प्रोसेस छोड़ के काम करेंगे तो वो बस्ती डूब जाती, इतना मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। जो भी अगर वो नाले के ताल्लुक से पब्लिक को मिसगाइड कर रहा, गुमराह कर रहा, तो मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सियासत अलग है, काम अलग है। इंशाअल्लाह जो भी है हम मिल के डेवलपमेंट करने को तैयार है। जो भी अगर मेरा भाई बस्ती का है, अगर उसको तकलीफ़ है तो आओ, आपके साथ ऑफिसर को लेके चलता हूँ, बताता हूँ, आप खुद समझ जाओ। अगर फ़र्ज़ करो आप ये बोलते हैं कि भाई ये तोड़ के बना दो, तो फिर बस्ती की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मेरा सब यहाँ पर एक सवाल है कि आवाम, याकूतपुरे की आवाम अगर आपसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहे और डायरेक्ट आपको अपने मसाइल सुनाना चाहे तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आवाम के मसाइल आवाम लीडरों को तो सुना रही है लेकिन आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफ़िक़ भी नहीं हूँ। और वजह यह है, मैं जीते सो 1 हफ्ते के अंदर खुबा मस्जिद तालाब कट्टे में नमाज़ पढ़ के बाहर निकला और मैं मेरे दोनों फ़ोन नंबर इमीडिएट पब्लिकली दे दिया। और मेरे पास हर कंप्लेंट पब्लिकली आती, वो कंप्लेंट को मैं अपने कारपोरेटर को, मैं खुद या जिम्मेदार को दे के भिजाता हूँ, फिर उनसे बात करके करता हूँ। आवाम डायरेक्ट राब्ते में है, अगर कोई नई राब्ते में है तो मैं उनसे भी कह दे रहा हूँ कि ऑलरेडी मेरे नंबर्स आप लोग के पास में है, एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते। और उसके अलावा मैं रोज़ 11 बजे से 2 बजे तक दारुस्सलाम में रहता हूँ, किसको भी कोई भी काम रहे वहाँ आ सकते। उसके बाद में एरिया के अंदर मेरी डेली मूवमेंट है, आप कहीं भी मुझे कैच कर सकते। आप अपनी शिकायत बताइए, शिकायत दूर करना मेरा काम है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो आपको खुद एरिया के अंदर शिकायतें कम मिलेंगी। जफरुद्दीन साहब, ये तो एक हकीकत है कि जब से आप MLA बने हैं कि याकूतपुरे में आप डेवलपमेंट के आज से बहुत कुछ कोशिशें कर रहे हैं और आप खूबसूरत याकूतपुरे को बनाने के लगे हुए हैं। जैसे कि तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक हो गया, रैन बाज़ार चमन के पास हो गया, और आज जैसे कि आप SRT कॉलोनी के पास आप जैसा कि, तो ये आपके जहन में कैसा आया? देखिए, पहली चीज़ तो एक्चुअली क्या होता, आवाम को रोड, ड्रेनेज, पानी, बरखी के अलावा विजिबल डेवलपमेंट भी दिखना चाहिए। आवाम की नज़र में आना चाहिए कि आपका MLA क्या काम हमारे लिए कर रहा, बेहतरी क्या हो सकती। लोग जीतने के बाद फ्लाईओवर्स दलाते, क्यों दलाते? इजी मूवमेंट हो, ट्रैफिक इजी हो और कंजेशन ना हो। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मैं याकूतपुरे में अगर ये चीज़ सोचूं
कि फ्लेवर का उसका, तो मेरे पास याकूतपुरे के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं। तो मैं क्या है, एग्जिस्टिंग बस्ती में क्या कर सकते हैं, जैसा आपने देखा आज से 3-4 दिन पहले हमने यहाँ पे तालाब कट्टे से जो रेलवे ट्रैक आ रहा, वहाँ का एक हम इनाग्रेशन करें, तो हम ट्रैक के ऊपर ही वेलकम टू तालाब कट्टा लगाए, वेलकम टू ईदी बाज़ार लगाए और पूरा पेंटिंग कराए। तो मेरा मतलब ये है कि आवाम निकली तो कम से कम उनको फील होना। और वैसी SRT कॉलोनी है, यहाँ तक कि हम लोग वहाँ पे रोड का अगर फ़र्ज़ करिए लोग नंबर बोलते कि बंजारा हिल रोड नंबर 1, 2, 3, वैसी जुबली हिल्स, तो क्यों ना हम ओल्ड सिटी के अपने गलियों का किसी को लैंडमार्क बताने के लिए क्यों नहीं डाल सकते। वो हम जुस्तजू कोशिश करके यहाँ SRT कॉलोनी से करें। हम एक छोटा सा फाउंटेन भी लगाए मॉर्निंग स्टार होटल करें। हमसे जो होता हम हत्तुल इम्कान एग्जिस्टिंग के उसके अंदर क्या खूबसूरती ला सकते उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। कुछ दिन के बाद आप ही पूरा ब्यूटिफिकेशन का एक बेहतरीन आप पूरा कवरेज करके दोबारा मुझसे बात करने आएंगे इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है, आपका करिए। शाहजहां फंक्शन हॉल के पास जो कचरा कुंडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, ये GHMC की लापरवाही है? अभी सुनिए, आप पहली चीज़, हर गवर्नमेंट का एक तरीक़ा होता। पिछली गवर्नमेंट जो BRS की थी, इन लोगों क्या करे, पूरे शहर हैदराबाद से बीन फ्री सिटी बोल के पूरे जितने डब्बे थे, पहले कैसा रहता था, डंपर बिन बोलते जिसको कचरे का डब्बा रहता, उसको डंपर प्लेसर बोलते, गाड़ी आती थी चैन कुप्पी डाल के उसको उठा के ले जाती थी। मगर पुरानी गवर्नमेंट में बिन फ्री करने की तरफ से प्रॉब्लम क्या हो गया, जो कचरा डब्बे में पड़ता था वो पूरा रोड पे स्प्रेड होना शुरू हो गया। रोड पे स्प्रेड होके जिसकी तरफ से गंदगी बढ़ी, तो आके अगर उठाते भी हैं उन लोग JCB से डाल के 1 टाइम 2 टाइम ऐसा। और दूसरी चीज़ क्या है, घर घर जो कचरा उठाने का है उसके अंदर कई जगह या तो उठाने वाले की लापरवाही होती है या देने वाले भी क्या करते, कहाँ देना बोल के नहीं देते। मगर इसके लिए इंशाल्लाह कल आप 3:30 बजे शाहजहाँ पे आइए, मैं दोबारा कमिश्नर से हमारी पार्टी रिप्रेजेंटेशन करके हम पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर ओल्ड सिटी के अंदर फिर से हम लोग डंपर बिन यानी कचरे के डब्बे डला रहे। कल उसका मैं इफ्तिताह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कर रहा हूँ। कुछ डब्बे आ रहे हैं, कल शाहजहाँ का भी पड़ जाएगा डब्बा। मेन जहाँ है मौला का चिल्ला, ऐसे मेन पॉइंटों के ऊपर मैं डब्बे लगा दूंगा। लगा दे के इंशाल्लाह कुछ दिन में उसकी भी तकलीफ को मैं दूर करूँगा। ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आपके घर तक लोग कचरा लेने के लिए आ रहे हैं, उनको कचरा देने के बजाय आप जो ना इधर उधर फेंक रहे हैं, तो आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है। भाई अब इधर देखो, ये चीज़ तो अब हम बहैसियत इलेक्टेड मेंबर बोल नहीं सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि भाई आपके घर पे आ रहा, जैसा मेरा खुद का घर है, मेरे घर पे आ रहा तो मैं लेके जाता हूँ। बाज़ मरता हूँ मेरे घर पे 3-3 दिन नहीं आता, उन्हें भी इंसान है, उसकी भी गाड़ी ख़राब होती है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ तकलीफ। फिर इन लोगों के क्या रहता, कचरे के काम के लिए मैं गाड़ियाँ देने को तैयार हूँ, मगर इत्तेफाक ऐसा है अपने कोई लोग गाड़ी लेने को तैयार नहीं रहते। इसमें जो भी कम्युनिटी इसमें काम कर रही है वो कम्युनिटी के हिसाब से भी हमको चलना पड़ता, उनके भी जो भी त्यौहार रहते, फलाना रहते, कुछ ना कुछ होता। इतना ज़रूर बोलता हूँ कि 80% लोग तो करते हैं, 20% लोग जो है ना वो करते हैं, मगर थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड होती है। जैसा आप फ़र्ज़ करिए, आप है, अगर आप अपने कपड़े निकाल के अलमारी में रखे, सब सही है, अगर आप उसको बिखरा दिए तो पूरा रूम कपड़े फैले हुए दिखेंगे। वही अगर एक जगह करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में आ जाएंगे। उसी तरह ये भी, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जिस तरीके से मैं सबसे मिल के काम कर रहा हूँ, यहाँ की याकूतपुरे की आवाम भी उसी तरीके से साफ़ सफाई का भी ख्याल रखते हुए काम करेंगे। जाफर साहब, रैन बाज़ार डिवीज़न में ही क्यों खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं? नहीं, आप थोड़ा सा गलत फहमी में है। रैन बाज़ार डिवीज़न नहीं, सब जगह हम लोग कर रहे हैं। अब तक तो रैन बाज़ार में ज़्यादा सुने नहीं हुआ। अभी देखिए आप, मैं बोला संतोष नगर का भी चालू हुआ है। मेरे को एक्चुअली क्या है, जहाँ जहाँ जगह मिलेंगे वहाँ वहाँ मुझे करने का है। ऑल ऑफ ए सडन मेरे को भी खुद समझ के काम करना पड़ेगा और वहाँ की आवाम से भी मशवरा करना पड़ेगा। आवाम के मशवरे से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी संतोष नगर का भी हमारा स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी करेंगे। तालाब कट्टे में भी हम सोच रहे हैं कि काम पे क्या करना है, वहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत चौरस्ता जगह सब मिलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप डबिलपुरा दरवाज़ा नहीं देखे, डबिलपुरा दरवाजे के बाजू में भी हम लोग ब्यूटिफिकेशन लेकर आए हैं। और अल्लाह के फजल से मेरे लिए याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एक सा है और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के करेंगे। चूँकि यहाँ पे रैन बाज़ार डिवीज़न के अंदर यहाँ पे मेरे को न सिर्फ प्लेसेस थे, हमारे कारपोरेटर
वासिउद्दीन साहब का भी ये ख्वाहिश थी कि भाई हमारे पास जगह तो है ना साहब, जल्द से जल्द स्टार्ट करा दिए तो बेहतर रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए। इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे, और कभी भी कोई भी चीज़ स्टार्ट एक जगह से ही होती है, उसके बाद वो जाके स्प्रेड होती है और फैलती है। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर साहब। मैं सैयद मुबीन, आज न्यूज़ के लिए हैदराबाद से।